Today we will discuss about national income. National income is the total income of the country in an accounting period which has been generated due to production activities in the country. Okay. So national income is also termed as NNPFC, net national product at factor cost, because these are actually the factor payments provided to the factors of production for using their services in order to undertake production activity. Students, there are generally three methods of calculating national income: income method, expenditure method, and product method. Product method is also known as value added method. So I am starting today with income method. Income method. Income method, generally we include all the factor income which has been rendered and provided or received by the factors of production in return of their factor services, like for land, rent, for labor, wages and salaries, for entrepreneurship, your profits, and so on. Okay, for capital interest. So all, when we add up all the incomes or factor payments received by factors of production in an economy during a current accounting period, then it is known as national income as per income method. In income method, while using formula, we get NDPFC. Now, what is NDPFC? What is NNPFC? What it is GDP? We have already done in previous chapter. NDPFC, full form of NDPFC is net domestic product at factor cost. Formula for income method is what? NDPFC is equal to compensation of employees plus mixed income plus operating surplus. The compensation of employees is generally all compensation given by the employer to their labor who has been hired to undertake production activity. That includes wages, salaries, social security contribution by employer, everything. Okay, that is COE. Mixed income is of self एम्प्लॉयड. जनरली व्हेन पीपल गेट सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अपने पर्सनल एसेट्स को यूज़ करते हैं, पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस. लाइक एक एक्स्ट्रा फ्रिज है, उसको आपने शॉप पे रख दिया, तो आपकी कैपिटल बच गई, पैसे आपके बच गए, लेकिन एसेट भी मेंटेन डेवलप हो गया. तो दिस इज़ नोन एज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. इनकम नहीं है, बट इसमें आपने अगर अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज़ करके बिजनेस किया, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड, क्योंकि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेग्रीगेट द इनकम्स रिसीव्ड बाय कैपिटल, क्योंकि पैसे आपके लगे हुए हैं, बाय लेबर, क्योंकि लेबर भी आपने खुद ही दिया हुआ है. सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अपने घर में शॉप खोली है, खुद ही आप पेमेंट गिन रहे हो, खुद ही आप सामान निकाल के दे रहे हो, तो सेल्समैन का काम कर रहे हो, खुद ही मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप मार्केटिंग मैनेजर भी आप खुद ही हो. तो मीन्स कि मिक्स इनकम हो रही है, वो एक ही के पास जा रही है, जिसको सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना पॉसिबल नहीं है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. थर्ड इज़ व्हाट? थर्ड इज़ योर ऑपरेटिंग सरप्लस. ऑपरेटिंग सरप्लस मीन्स कि विच हैज़, इट इज़ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होती है? रेंट होता है. और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? प्रॉफिट होता है. तो ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं? वो होती है आपकी रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. रेंट फ्रॉम लैंड और फैक्ट्रीज या बिल्डिंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड प्रॉफिट फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप. अगर आपने कुछ काम किया है, मैनेजमेंट किया है, ऑर्गेनाइज किया है, और रिटर्न में ओनरशिप है, आपने किया है कोई बिजनेस का, तो रिटर्न में आप भी तो कुछ लोगे. नोबडी इज़ हैविंग फ्री टाइम टू डू सोशल सर्विस राइट नाउ. आजकल तो लोग सोशल सर्विस से भी पैसे बना लेते हैं, राइट? तो दिस इज़ अ थिंग. तो प्रॉफिट्स आर द रिटर्न फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, जिसने एक आइडिया बिजनेस का डेवलप किया है और उसको एक बिजनेस का शेप दिया है. तो in return he also wants something. He is giving his precious time, his precious money. That is why he required return, and that is known as profits. Okay, तो इन तीनों को अगर जब हम जोड़ देते हैं इनकम मेथड में, तो you get what? You get NDPFC. But national income is what? National income is not NDPFC, it is NNPFC. तो NNPFC जो है आपका, उसका फॉर्मूला क्या हो गया? ये तो NDPFC था. Now you will convert this NDPFC to NNPFC. This we have done in conversion already. तो क्या हो गया? NDPFC आपका ये हो गया.
COE प्लस मिक्स इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इसमें हम जब NFIA जोड़ देंगे तो यू विल गेट व्हाट, NNPFC। ओके, तो दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ नेशनल इनकम। अगर आपसे नेशनल इनकम पूछा जाए तो यू विल कैलकुलेट लाइक दिस। अगर आपसे NDPFC पूछा जाए यू विल कैलकुलेट लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट, there are few precautions which we should kept in mind while performing and while calculating national income by income method. What are those precautions? क्या सावधानियाँ हमको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या मेन पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए while calculating national income, computing national income by income method? पहला है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। फर्स्ट इज़ व्हाट, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होते हैं? वो पेमेंट्स होते हैं जो यूनिलेटरल होते हैं, वन साइडेड पेमेंट्स होते हैं। कौन से पेमेंट्स होते हैं? वन साइडेड पेमेंट्स होते हैं। और इकोनॉमी में हम उन्हीं एक्टिविटीज़ को कंसिडर करते हैं जहाँ पे एक्सचेंज हुआ हो, एक ने बाय किया हो तो दूसरे ने सेल किया हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मनी तो आई है, पेमेंट तो हुआ है, बट बदले में रिटर्न कुछ नहीं लिया है, ठीक है। लाइक स्कॉलरशिप्स बाय द गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स देती है तो स्टूडेंट्स को इनकम रिसीव होती है, मनी रिसीव होती है, बट रिटर्न में उन्होंने कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं की है जिससे कंट्री में GDP बढ़े। तो ट्रांसफ़र पेमेंट, लाइक पेंशन्स के लिए हम पहले काम कर चुके हैं, बट रिटायरमेंट पेंशन जो होती है वो ट्रांसफ़र पेमेंट होती है। रिटायरमेंट पेमेंट को भी हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो दीज आर द ट्रांसफ़र पेमेंट्स। विंडफॉल गेंस, व्हाट डू यू मीन बाय विंडफॉल गेंस? हवा के साथ जो गिर जाए आपके पास फ़ायदे, उनको बोलते हैं विंडफॉल गेंस। जैसे लॉटरी, रोज़ ट्राई करते हैं, 5 रुपये का टिकट खरीदते हैं, अचानक से 5,000 की लॉटरी लग गई, तो जो 5,000 रुपीज़ आपको इनकम जनरेट हुई, गेन हुआ, दैट इज़ नॉट योर इनकम, क्योंकि बदले में आपने कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं की है। जो गेन हुआ दैट इज़ कॉल्ड विन। अचानक से जो गेन हो जाते हैं, फ़ायदे हो जाते हैं, वो कहलाते हैं विंडफॉल गेन्स, right? So these are also not included while calculating national income through income method. Why? Because windfall gain से कोई actual production में addition नहीं होता है। Commission and brokerages on second hand goods as well as commission and brokerages on your shares, financial assets like shares है, debentures है, bonds है, इनमें जो commission and brokerage दिया जाता है वो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में ऐड नहीं करता, कंट्री की GDP को ऐड नहीं करता, और इसीलिए इनको भी इंक्लूड नहीं किया जाता। नेक्स्ट इज कॉम्पनसेशन बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो कुछ भी देगा वो COE में जुड़ेगा, अगर किसी और ने दिया है तो वो COE में ऐड नहीं होगा। इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे कि अंडर द टेबल मनी लेना, करप्शन हो गया, ठीक है, या फिर आपका ब्लैक मनी हो गई, तो होर्डिंग से पैसा कमा लिया, तो ऑल दिस थिंग्स जो है आपने जो है इलीगल एक्टिविटी से जो भी इनकम जनरेट होती है वो इंक्लूड नहीं होती है नेशनल इनकम में, क्योंकि वो तो लीगल ही नहीं है। जो चीज़ लीगल ही नहीं है उसको नेशनल इनकम में हम कैसे जगह दे सकते हैं। नेक्स्ट इज सेल्फ कंजम्पशन। जो भी प्रोडक्शन किया गया, अगर कुछ पार्ट, अगर मैं फार्मर हूँ और मैंने वीट ग्रो किया है, मैं पूरा वीट मार्केट में तो बेचूंगी नहीं, हम लोग भी रोटी खाते हैं, तो वीट कुछ पार्ट अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखेंगे, तो दैट सेल्फ कंजम्पशन पोर्शन शुड ऑल्सो बी इंक्लूड। अगर उसको हम मार्केट में बेचते तो हमको इनकम जनरेट होती ऑन वन हैंड, और अगर हम मार्केट से वीट खरीदते तो हम पेमेंट करते तो ऑन दी अदर हैंड। तो दोनों ही तरीके से ये इकोनॉमी में बेनिफिट करता, किसी की इनकम होता, किसी का एक्सपेंडिचर होता। इसीलिए सेल्फ कंजम्पशन में जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ होते हैं दे आर इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। किसी भी मेथड से, अगर वो एक्सपेंडिचर मेथड में भी आएगा, खर्चा हुआ, और इनकम मेथड में भी आएगा, क्योंकि वो किसी, अगर हम मार्केट में वो पैसा, वो वीट बेच देते, अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं रखते, तो हम इनकम जनरेट कर लेते। अब क्योंकि वीट तो हमको खाना था तो हम वीट दूसरे से ख़रीदते, खुद का बेचते, दूसरे का ख़रीदते, तो एक्सपेंडिचर भी करते। तो दोनों तरीके से सेल्फ कंजम्पशन में हुआ इनकम और एक्सपेंडिचर, मार्केट में बिका नहीं बिका, सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर मैंने कोई चीज़ रख ली है तो वो इनकम मेथड में ऐड होगी, नेशनल इनकम में ऐड होगी, उसको आप इग्नोर नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में आ गया कि राइस केप्ट फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड नॉट सोल्ड इन द मार्केट, तो इट विल बी इंक्लूडेड एंड एडेड in your national income calculation. You will not ignore it. Okay, so these were the precautions of your income method.